आप देख रहे हैं आपका बाजार। लगातार बाजार में इस वक्त सुस्त कारोबार हो रहा है। 87-97 के लेवल्स पर फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन के साथ निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही कामकाज कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं आज के जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है इन्फोसिस को लेकर, खासतौर पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इन्फोसिस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। भले ही जो रिफ्ट सामने आ रहा है फाउंडर्स के बीच, बोर्ड के बीच, उसको लेते हुए हमने कंपनी के पूर्व CFO वी बालाकृष्णन से बातचीत की। मिहिर भट्ट जी बिजनेस एडिटर ने, आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। Bala, thanks for joining us. Pleasure having you. And thank you so much for speaking to us first on Z Business. So first of all, whatever is going on right now, I think market wants to hear something concrete rather than the mails which are flying around or the statements which are coming in the media. So what is the core issue at this point? No, I think the core issue is the founders have raised some corporate governance issues in the company. And they have been raising it for some time. And I don't think the board has effectively engaged with them and addressed all the concerns. I think that is the core issue. So what are the bone of contentions? No, there are several issues they raise. It's all in the public domain. And the board has not taken any steps. And yesterday they put out a statement to say they hired a law firm to intermediate between the founders and the board to address the issues. I think it's a very wrong approach. Because when a large shareholder, that too people of pedigree like Murthy and others, raise certain concerns, board should directly engage with them and address the issue. I think the board has literally failed in addressing those issues. That is why the issue is being blown up. Right, absolutely. Also, Bala, in fact, you actually put words in my mouth that when someone like Mr. Narayan Murthy, who is considered the doyen of Indian IT industry, if he has any discomfort about the way company is being operated or about the way company is being run, you think the board should have actually risen up to the occasion and connected directly with the founders and maybe tried to take advice from them, or maybe discussed frankly with them the issues which are affecting the company's performance, rather than engaging in a flamboyant way and take the legal course? Of course, you are right. Look at what happened in Cognizant. There was a large shareholder who wrote a letter, raised certain concerns. Board effectively engaged with him, addressed all his concerns and came to a conclusion. I think that is the right approach. And these are all not ordinary shareholders. Please remember, Murthy has built this company from scratch to some $40 billion of market cap. So you have to hear the views, you have to address the concerns. You can't just brush away like any other shareholder. And the corporate governance is a foundation of Infosys, the gold standard for corporate governance in this country. And when the value systems are impacted, naturally they will be agitated, and the board has got the responsibility to engage with them and address that. Right. Sir, also, since you mentioned that these corporate governance issues and the way company is being run, these issues have been going on for some time. So exactly since when founders have been expressing their displeasure about this whole issue? I don't know, you have to ask them, but it has been going on for some time, looking at the press reports. I think this has gone out of control now. I think actually the board now rises to the occasion and settle this matter in the interest of all the stakeholders. But at this point, what it looks like, Mr. Bala, is that we are probably looking at a prolonged legal battle rather than solution. No, for everything there is a solution. I think the board has to take the first step because the founders have done the bit. The board has not addressed the concern. I think board has to take the first step and do this. What could be those, Mr. Bala, what could be those immediate steps which can at least restore the confidence of shareholders on one hand, markets on the other hand, and more than anything else, the founders and co-founders? No, I think there is a big trust deficit between the founders and the board. That's why I'm suggesting that chairman should step down, get the interim chairman, and he should, along with the board members, engage effectively with the founders, take all the input, address all the concerns, and settle the matter once for all. There's no point in fighting in the public on all this. It will only impact all the stakeholders. It's not in the best interest for them. Unfortunately, this has happened in Infosys, and just at the tail end of what happened in the house of Tatas. Personally, sir, you have been associated with the company. You are one of the co-founders, and you have seen the company grow. What is your personal feeling at this point? No, I am feeling very sad and disappointed. I am feeling let down by the board. I think this is not the way to manage companies. It's a large company. It's an iconic company.
It created hope for millions of Indians. I think it is in the best interest of everybody to settle the matter amicably at the quickest possible time. Right. All right, sir. Thank you so much for joining us. तो आपने सुना यहाँ पर वी बालाकृष्णन को, जो कि फॉर्मर सीएफओ रहे हैं इन्फोसिस के। एक्सक्लूसिव फर्स्ट ऑन जी कॉन्वर्सेशन आपने उनके साथ सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि फाउंडर्स और बोर्ड की सोच के बीच में मतभेद है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीवरेंसेस पैकेजेस जो दिए गए हैं वो, और साथ ही साथ जो विशाल सिक्का को पे हाई किया गया उसको लेकर क्वेश्चंस बोर्ड ने रेज किए हैं। इस पर बातचीत करते हैं। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मिस्टर आर.एस. लूना हैं, उनका व्यू भी ले लेते हैं इस पूरे ही मसले पर। मिस्टर लूना, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। ये सबसे पहले तो आप इस पूरी ही जो अब तक की स्टोरी डेवलपमेंट हुई है इन्फोसिस पर, इसे आप कैसे देखते हैं? अब से कुछ दिनों पहले हम टाटास की बात कर रहे थे बॉम्बे में, और अभी अब ऐसा लग रहा है कि शायद एक नया कॉर्पोरेट बैटल अब बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। अब तक जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो बोर्ड जो फाउंडर्स ने इशू रेज किए हैं, उसके बाद जो रिप्लाई इन्फोसिस की ओर से आया है, ये पूरे मसले को अभी आप कैसे रेट कर रहे हैं? क्योंकि इन्फोसिस को एक बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। जो इश्यूज उठाए गए हैं उसमें बेसिकली 2-3 मेजर इशू बनते हैं। जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट इशू कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उभरता है वो ये है, जो इन्होंने कहा है कि जो पुराने सीएफओ और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर थे उनको जो सर्विलेंस पैकेज दिया है वो बहुत हैवी दिया है, और इट वाज अ सॉर्ट ऑफ हाश मनी। दैट मीन इंटेंशन इज टू शो कि भाई कंपनी में कुछ ऐसा गलत काम हो रहा था जो कि शायद सीएफओ और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उसको डिस्क्लोज करने वाले थे, लेकिन उनको इस काम ये डिस्क्लोजर करने से रोकने के लिए ज़्यादा पैसे दिए गए। अगर ऐसी वाकई ही कोई बात है तो ये मेरे ख्याल में चिंताजनक बात है। ये कंसर्न फाउंडर्स का जो है वो जेन्युइन बन जाता है, तो उसमें एग्जामिनेशन करना जरूरी बन जाता है। तो एक तो ये इशू है जो उन्होंने उठाया है। तो दूसरा इशू जो है वो उठा रहे हैं अपना चेंजेस इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें मेरे ख्याल में उनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट पावर जो है डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की वो शेयर होल्डर्स के पास ही रहती है, और वो शेयर होल्डर्स है एज ए बोर्ड दे शुड आई थिंक अलाउ द बोर्ड टू परफॉर्म, क्योंकि जो नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी बनाई गई है अंडर सेबी रेगुलेशन कंपनीज लॉ के तहत ही, तो वो कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो पहले जो भी डायरेक्टर के लिए कैंडिडेट है उसको थॉरली एग्जामिन करें, रिकमेंड करें, और फिर बोर्ड और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स ने उसको अपॉइंट करना है। तो उसमें मेरे ख्याल में कोई इतना इशू बनता नहीं है। और अगर वो कहें कि भाई जैसे मिस्टर मार्टिन सुब्रमण्यम उनको को वाइस चेयरमैन बनाना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल में बाहर है, वो बोर्ड की बात है। बोर्ड को डिसाइड करना है कि कौन चेयरमैन होगा, कौन को चेयरमैन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से फाउंडर्स की ये rather interference है, it will not be a good corporate governance. राइट मिस्टर लूना, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ये शायद बोर्ड के हाथ में ही है कि वो किसको चेयरमैन रखें या फिर आगे बढ़ाएं। हमने कुछ ही देर पहले पूर्व सीएफओ वी बाला से भी बातचीत की थी, और उनका ये मानना था कि खास तौर पर इस तरीके के मुद्दों को इंटरनली ही सॉल्व करना चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर और उनसे लेटर्स पे एक्सचेंज करके जो भी उनके व्यूज हो उनको लेकर करना चाहिए, ना ही कोई लीगल कोर्स लेना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी इन्फोसिस को इन सभी मुद्दों पर, भले ही वो रेम्यूनरेशन का मुद्दा हो या फिर अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर हो, उन सभी को लेकर आगे कैसे बढ़ना चाहिए? अब नहीं, ये ठीक बात कह रहे हैं कि ये जो ज्यादातर जो इस तरह के इश्यूज हैं वो तो बोर्ड लेवल पे ही रिजॉल्व होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो बोर्ड की ही है। और ये कमेटीज में कौन होना चाहिए, कमेटी का चेयरमैन कौन होना चाहिए, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। कंपनी का डायरेक्टर कौन होना चाहिए, एटलीस्ट रिकमेंडेशन जो है वो तो बोर्ड की आनी चाहिए। तो ज़्यादातर इशू जो भी हैं, अगर कोई मान लो ऐसे इश्यूज भी हैं कि जिसमें लगता है कि
डिस्क्लोजर्स प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जी। तो वो भी मेरे ख्याल बोर्ड को ही एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अच्छी तरह से वो ट्रांसपेरेंसी लेके आए, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है वो यही है कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हो, सारे फंक्शन जो है वो फेयर एंड फेयर परफॉर्म किए जाए। जी। और अगर ऐसा सब ठीक होता है तो उस पॉइंट व्यू से मेरे ख्याल में बोर्ड जो है वो अपने आप में अच्छा काम परफॉर्म कर सकता है। जी। चलिए, शुक्रिया मिस्टर लूना, आपने समय दिया जी बिजनेस को और इस पूरे ही मसले पर अपने व्यूज आपने शेयर किए। विवेक, आप कुछ कमेंट ऐड करना चाहेंगे? सबसे बुरी बात यह है कि मैं अभी बाला का इंटरव्यू सुन रहा था और मुझे लगता है कि सारे जो बड़े प्रमोटर्स होते हैं ना उनका यही एक एटीट्यूड होता है। उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट, ही इज ए मेजर शेयर होल्डर, इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर, यू कैन नॉट ब्रश हिम लाइक एनी अदर शेयर होल्डर। अरे मेरे पास 100 होने दो या 1 लाख शेयर होने दो, शेयर होल्डर रहता है, यू शुडंट ब्रश एनीवन। तो ये एक खराब एटीट्यूड है। और अभी देखो स्टोरी अनफोल्ड होगी और भी आगे जाके कैसे होगी ये पता नहीं है, लेकिन अगर इन्फोसिस समझ लीजिए कोई भी पैनिक में 900 या उसके नीचे मिले तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बाई रहेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों की जो क्वेरीज आई हैं मुंबई से वो भी ले लेते हैं। एक सवाल हमारे पास मुंबई से आया है सुदेश का, ये जानना चाहते हैं टाटा स्टील के बारे में। 200 शेयर्स हैं इनके पास, 483 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। मानस, आपके पास आना चाहेंगे, टाटा स्टील पर अभी आपके क्या राय है, और खास तौर पर जो 20 रुपए के आसपास का अभी इनको नुकसान हो रहा है उसको कैसे प्रॉफिट में बदल सकते हैं? देखिए 377 से हमने एक स्मार्ट रैली स्टॉक में देखी है और 480 तक के लेवल्स देखने को मिले। और ये जो रैली थी बहुत कम समय में हमने देखी है, करीब 7-8 मंथ में ही हमने 100 रुपए से ज़्यादा की रैली स्टॉक में देखी है। और पिछले 3-4 दिनों के पैटर्न देखिए तो ऐसा लगता है कि शायद अब स्टॉक करेक्ट होने के लिए तैयार है और शायद 20 से 25 रुपए का करेक्शन भी हम देख सकते हैं। बट उस पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो अभी बेहतरीन है। और अगर टाइम फ्रेम बड़ा रखा जाए, अगर 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम हो तो उम्मीद करिए कि 520 से लेकर 530 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो करेक्शन जरूर देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से तो हर गिरावट पे टाटा स्टील में खरीदारी करनी चाहिए। जी, तो हर गिरावट में टाटा स्टील पर खरीदारी की सलाह है। एक और क्वेरी ले लेते हैं, एसएमएस के जरिए हमें सवाल भेजा है अंकुर गर्ग ने मुंबई से। सवाल है इनका अशोक लेलैंड पर, 115 शेयर्स इनके पास, 77 इनका परचेजिंग प्राइस है। लेकिन अशोक लेलैंड पिछले 2 महीने में स्पेशली एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, 93 के लेवल्स पर आज ट्रेड कर रहा है। और जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बात हो रही है ट्रक और बसेस की, अगर वो आई, वो जल्द लागू हुई तो उसका भी एक वन ऑफ द बेनिफिशियरी होगा। क्या सलाह है आपकी? ठीक ठाक प्रॉफिट्स हो रहे हैं विवेक इनको अशोक लेलैंड में, क्या करें अभी? इनफैक्ट अशोक लेलैंड इसी शो पे जब करीबन 80 लेवल्स में था, 80 रुपए पे था, हमने बात भी किया था और इसको मैंने 100 रुपए के ऊपर वापस जाएगा करके टारगेट भी दिया था। तो आज 93 है और फिलहाल यहाँ पे भी कॉस्टली नहीं लग रहा है। और जो भी आज पॉलिसी डिसीजन होगा, फॉर एग्जांपल स्क्रैपेट जो भी फैसिलिटी है उसका टैक्स बेनिफिट मेजरली हेवी मोटर व्हीकल सेगमेंट को मिल सकता है। तो अगर वो आता है तो अशोक लेलैंड इसमें फायदा करेगा। और टाटा मोटर्स जो भी हेवी व्हीकल्स में आती है, सब कंपनीज उसमें फायदा करने वाली है। तो अशोक लेलैंड भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये 100 के ऊपर वापस जाने का इसका पूरा संभावना है। तो इसको होल्ड कीजिए आप।